Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have completed reading our poem, that is Dust of Snow. Okay, so we have seen the explanation and we have also discussed all the literary terms, all the poetic devices that were used in the poem. Okay, so what is the basic idea of the poem, what is the summary of the poem? We can say the main idea, the central idea that is presented in the poem is the poet wanted to say that if we think that some things are having negative effect or negative vibes, or they are not good for us, they are not auspicious for us, but they are ominous, or we can say they are very bad, then it is only in our mind. In reality it is not like that. तो poet कहना चाहते हैं कि ये एक जनरल नोशन है सभी ह्यूमन बींग्स का कि कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, कुछ चीज़ें तो हमारे लिए बहुत शुभ होती हैं, और कुछ चीज़ों का हमारे सामने आना जो है वो अच्छा नहीं है, अशुभ है, और उनके आने की वजह से हमारे साथ भी कुछ बुरा होने वाला है. ओके, तो पॉइंट कहना चाहते हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हमारे माइंड की बातें हैं, हमारे ही क्रिएट की हुई बातें हैं. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता क्योंकि पूरी यूनिवर्स गॉड ने ही क्रिएट की है. तो गॉड की क्रिएट की भी कुछ चीज़ अच्छी है, शुभ है, और गॉड की ही क्रिएट की भी कोई चीज़ हमारे लिए बुरी या अशुभ कैसे हो सकती है? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हमारे माइंड में है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता. ओके, एंड द सेकेंड आइडिया that the poet presented in the poem is the poet wanted to show the power of nature. Okay, so the poet gave this idea that if you are feeling some kind of sadness, if you are sorrow or upset because of some reason, then just go to nature, just see the beautiful nature, just adore the beauty of nature, and you will see that how your mood changed, how the feelings of in your heart changed. The sadness that was there has turned into happiness, the sorrow that was there has turned into joy और प्लेजर. ओके, सो पॉइंट कहते हैं कि जब कभी भी आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रहा हो, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो किसी भी रीज़न से, और आप अपना मूड चेंज करना चाहते हो, आप थोड़ी सी हैप्पीनेस चाहते हो, तो उसका सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप नेचर में जाओ, आप नेचुरल ब्यूटी को देखो, नेचुरल थिंग्स को देखो, क्योंकि नेचर में वो पावर है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो इमोशंस है हार्ट में, उन इमोशंस, उन फीलिंग्स को भी नेचर चेंज कर सकता है. जो सैडनेस है, उस सैडनेस को नेचर जो है वो हैप्पीनेस में चेंज कर सकता है. जो सोरो है, उस सोरो को नेचर जॉय में, और हम कह सकते हैं एक अच्छे प्लेजर में नेचर चेंज कर सकता है. वो पावर है नेचर में, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, और हम कह सकते हैं नेचुरल ब्यूटी में. ओके, सो बहुत ही शॉर्ट 2 स्टैंजास में लिखी हुई पोम है, 8 लाइन्स इन पोम की, और हमने देखा था द सिंगल सेंटेंस कंटिन्यूज थ्रू आउट द पोम, सो बिकॉज देयर वाज द यूज ऑफ इंजैपमेंट. ओके, एंड द अदर लिटरेरी डिवाइसेस दैट वर देयर, वी हैव डिस्कस्ड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, and we have also saw what is assonance and alliteration, right? So now in this video we will see the comprehension part, we will solve the questions that are given in the poem. Okay, so let's start. Question first: what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? Okay, so in this question we have to tell 3 things. First is we have to tell what is dust of snow. Okay, so what is the meaning of dust of snow? Second, we have to tell that what does the poet say has changed his mood. So we have read that earlier his mood was very bad, he was having sadness in his heart, but then his mood changed. So what was the thing that changed the mood of the poet? And next we have to tell that how his mood changed, what was the change in his mood earlier, what was there in his heart, and later what was the change. Okay, so let's see the answer. A dust of snow means particles of snow held together. So first question was what is the meaning of dust of snow? So dust of snow means little particles of snow that are held together, or we can say the snow flakes. Okay, तो जो snow के छोटे छोटे से हम कह सकते हैं छोटे छोटे से कण होते हैं, जो छोटे छोटे से उसके टुकड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं dust of snow. The falling of the dust of snow on him changed his mood. And what changed his mood? तो उसका mood कैसे change हुआ था poet का?
था, कैसे चेंज हुआ था, जब वो डस्ट ऑफ स्नो, जब वो लिटिल पार्टिकल्स ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर गिरते हैं, तो जब वो टच करता है उन्हें, जब पॉइंट उस नेचर को, जो डस्ट ऑफ स्नो इज रिप्रेजेंटिंग नेचर हियर, सो व्हेन द पॉइंट गॉट द टच ऑफ द nature, when the poet experienced the nature, then his mood changed suddenly. First he felt sad, and what was the change in his mood? What was the change? So the change was that earlier he was feeling very sad, there was a sadness in his heart, but the falling of the dust of snow changed his mood. But when he got the touch of the nature, when he got the touch of the snow, उसका mood suddenly change हो जाता है. It changed it towards the beauty of nature or in a different way. तो जो सैडनेस थी उसके हार्ट में, पॉइंट के हार्ट में जो सैडनेस थी, जो सोरो था, वो सडनली चेंज हो जाता है. अब पॉइंट क्या रियलाइज करते हैं, वो देखते हैं कि ये जो नेचर है वो कितनी ब्यूटीफुल है, और एक डिफरेंट वे से उनका मूड चेंज हो जाता है. यानी कि जो सैडनेस थी वो चेंज हो जाती है हैप्पीनेस में, तो एक डिफरेंस आ जाता है उनके मूड में. ओके, तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है लिटिल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और जब वो पॉइंट के ऊपर गिरते हैं, पॉइंट जब उनको फील करते हैं, उनका टच फील करते हैं, तब उनका मूड चेंज हो जाता है. और क्या चेंज हो जाता है, अर्लियर ही वॉज वेरी सैड, देयर वॉज अ सैडनेस, और वी कैन से देयर वॉज अ सोरो इन हिज हार्ट, बट बिकॉज ऑफ द टच ऑफ स्नो हिज मूड सडनली चेंज इनटू हैप्पीनेस. ओके, next question, how does Frost present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer. So next question is that the poet, that is Robert Frost, that so we have to tell that how does he present nature in this poem. इस poem में उन्होंने nature को किस तरह से present किया है. The following questions may help you to think of an answer. और इस question का answer देने के लिए हम नीचे लिखे questions का answer दे सकते हैं. उनकी help से हम ये बात बता सकते हैं कि नेचर को फ्रोस्ट ने किस तरह से प्रेजेंट किया है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोम? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू टेल दैट व्हेनेवर वी रीड सम पोम्स, सो हैव यू एवर सीन दैट crow is a bird that is mentioned in the poem, or what are the birds that are usually used in the poems? तो जब भी हम poems पढ़ते हैं, कौन कौन से बर्ड हैं जिनको जनरली यूज़ किया जाता है पोइट्री में, और क्या आपने पहले कभी देखा है कि किसी पोम में क्रो को यूज़ किया गया है एज अ बर्ड? और साथ में हमें ये बताना है कि जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या इमेज बिल्डअप होती है, हमारे माइंड में फर्स्ट थिंग क्या आती है जब हम क्रो को इमेजिन करते हैं. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. Birds with great qualities are usually named in poems. तो हमने जनरली देखा है कि जो पोइट्री होती है उसमें जनरली जो बर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बर्ड्स जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं. सम ऑफ सच पॉपुलर बर्ड्स आर कुकू, मैना, पिकॉक, parrot, etc. So these are the birds that are generally or usually used in poems like cuckoo, मैना, peacock or parrot. So these are the birds that are having some or other specific quality. Okay, some are having beautiful, you know, some of the birds are looking very beautiful, some are having very sweet voice, or we can say some the voice of some birds are very sweet. तो इन सब में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, किसी की वॉइस बहुत स्वीट होती है. तो इसी तरह की कुछ ना कुछ क्वालिटी एसोसिएटेड होती है इन बर्ड्स के साथ, जिन बर्ड्स का जनरली यूज़ किया जाता है पोइट्री में. अ क्रो इज़ रेयरली मैंशन्ड इन पोम्स. और जो क्रो है वो ऐसा बर्ड है जिसको बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है पोइट्री में, क्योंकि क्रो में कुछ भी स्पेशल क्वालिटी नहीं है, ना वो दिखने में अच्छा है, ना उसकी आवाज़ अच्छी है, ना ही वो डांस कर सकता है. तो कुछ भी ऐसा नहीं है क्रो के बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी जिसकी वजह से क्रो का पोइट्री में यूज़ किया जाए. हाउएवर इट इज़ मैंशन्ड वेयर देयर आर ट्रेजिक और सीरियस थीम्स. और हमने अगर हमने क्रो का यूज़ देखा है पोइट्री में तो हमने वहीं देखा है जहाँ कहीं ट्रेजिक चीज़ को या किसी सीरियस थीम को शो करना होता है. तो जो क्रो बर्ड है दिस इज़ एसोसिएटेड विद सम नेगेटिविटी. तो जहाँ कहीं भी कुछ ट्रेजिक शो करना होता है, कुछ सीरियस थीम शो करनी होती है, तो वहाँ यूज़ किया जाता है क्रो का. तो क्रो का यूज़ कभी भी ब्यूटी को प्रेजेंट करने के लिए या गुडनेस को प्रेजेंट करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी नेगेटिव चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, किसी ट्रेजिक चीज़ को या किसी सीरियस थीम को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है.
इट इज़ लुक्ड एट ऑमिनसली, और जो क्रो है इस बर्ड को बहुत ज़्यादा ऑमिनस माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसे अशुभ माना जाता है। व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो वी मेड इमेजेस ऑफ सैडनेस और सेम बैड हैपनिंग, इसीलिए हमारे माइंड में भी जब हम क्रो को इमेजिन करते हैं तो हमारे माइंड में भी वही सब कुछ आता है, कुछ बैड होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होगा, इस तरह की बातें हमारे माइंड में आती हैं, क्योंकि ये एक जनरल नोशन है, सभी ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा ही होता है। हमेशा से हम ऐसा ही सुनते आए हैं, देखते आए हैं अपने आसपास कि जो क्रो बर्ड है दैट इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी और दैट बर्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस वन। ओके, इसीलिए हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब भी हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में भी फर्स्ट चीज यही आती है कि अब कुछ बैड होने वाला है, राइट? Again, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? Secondly, हमें बताना है कि हेमलॉक ट्री क्या होता है, साथ में हमें बताना है कि पोइट ने हेमलॉक ट्री का यूज़ क्यों किया है। और भी तो बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्री होते हैं जैसे कि मैपल, ओक, पाइन, तो ये ट्री बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और जनरली पोइट्री में इन्हीं ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है। लेकिन पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इन ट्रीज़ को यूज़ करने की बजाय उन्होंने अपने इस पोम में हेमलॉक ट्री का यूज़ क्यों किया है। ओके, लेट्स सी द आंसर। A hemlock tree is a poisonous plant. So what is hemlock tree? It is a tree that is considered to be very poisonous. It has small white flowers and it is the tree with some small white flowers on it. The poet does not write about the more beautiful tree because this hemlock tree goes very well with the ominous crow and his sad mood. And the reason why did he use this tree instead of other beautiful trees is that this tree goes very well with the ominous crow and his sad mood. तो पोइट ने इसी ट्री का यूज़ क्यों किया, जो बाकी अदर ब्यूटीफुल ट्रीज हैं उन्हें छोड़ के इस पॉइजनस ट्री का यूज़ क्यों किया? तो उसका रीज़न यही है कि ये जो ट्री है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है एक ओमिनस बर्ड के साथ और पोइट के मूड के साथ। तो जो बर्ड है वो भी क्या माना जाता है, ओमिनस माना जाता है। और फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था जो पोइट का मूड था वो कैसा था, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो क्रो भी नेगेटिविटी को शो कर रहा है, पोइट का जो मूड है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पोइट ने यूज़ किया है हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री भी रिप्रेजेंट करता है किसे, नेगेटिविटी को। तो तीनों ही चीज़ें, क्रो एज अ बर्ड, हेमलॉक एज अ ट्री एंड द मूड ऑफ द पोइट, दिस थ्री थिंग्स मेक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन को, इस नेगेटिविटी को एनहांस करने के लिए पोइट ने यूज़ किया है हेमलॉक ट्री। ओके, It heightens the sadness prevailed in the mind and the heart of the poet. और इस ट्री का यूज़ करके पोइट ने हाइटन किया है, हाईलाइट किया है उस सैडनेस को जो कि फैली हुई थी पोइट के हार्ट और पोइट के माइंड में। तो पोइट जो कि इतने ज़्यादा सैड थे, जो सैडनेस उनके हार्ट और माइंड में थी, उस सैडनेस को हाईलाइट करने के लिए, हाइटन करने के लिए पोइट ने यूज़ किया है हेमलॉक ट्री को। ओके, तो अपनी सैडनेस को शो करने के लिए पोइट ने यूज़ किया है क्रो एज अ बर्ड एंड हेमलॉक एज अ ट्री। ओके, नेक्स्ट, what do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? So we have to tell that the tree we have read hemlock and the bird that we have read crow. So what these two things represent? We are giving with two options. So we have to tell that do they represent joy or do they represent sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Next we have to tell that the dust of snow that was fallen because of the sitting of the tree on the poet. So what does the dust of snow stand for? Okay, so dust of snow किसके लिए आई है, वो dust of snow क्या रिप्रेजेंट करती है, हमें ये बताना है। और साथ में हमें ये बताना है कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को या फिर सोरो को। ओके, तो हमें दो ऑप्शन में से हमें चूज करके बताना है आंसर। The crow and the hemlock tree represent sorrow and evil. So we all know that the crow bird and the hemlock tree, both the things are the thing that represents sorrow or that is evil. The dust of snow stands for some natural beauty or something joyful, and the dust of snow, or we can say the little particles of snow in the poem, is used to show the natural beauty or we can say something joyful. तो the dust of snow है वो किसके लिए आया है, वो रिप्रेजेंट करता है नेचर को और वी कैन से नेचुरल ब्यूटी को। ओके,
It means the sad day is going to change. और जब poet got the touch, when the poet got the touch of that natural beauty, when he was aware that the nature is so beautiful, then only he decided that the day that he was spending in just regretting, or he was thinking that how bad the day is, then suddenly he realized that now he will not do so. He will enjoy the day. It is going to change into something joyful for the poet. और फिर poet decide करते हैं कि अब वो अपना दिन वेस्ट नहीं करेंगे, अब वो उसे इंजॉय करेंगे, और अब उनको लगता है कि अब जो बचा हुआ समय है, अब जो बचा हुआ टाइम है उस दिन का, वो बहुत उनके लिए जॉयफुल है, वो उनके लिए बहुत ही हैप्पी टाइम है. ओके. Next question. Have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? So now our question is that in your life, have you ever felt the same feeling, the depression or same hopelessness in your heart? Okay, तो हमें बताना है क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है? और साथ ही हमें अपना एक्सपीरियंस बताना है कि क्या हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं किसी रीज़न की वजह से, और अचानक से कुछ मोमेंट होता है और उस वजह से हमारा मूड चेंज हो जाता है. तो हमें यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताना है. सो स्टूडेंट, यू कैन ऑल राइट योर ऑन एक्सपीरियंस हियर इन द आंसर दैट इफ एवर यू हैव फेल्ट द सेम डिप्रेशन और द सेम होपलेसनेस इन योर हार्ट, और देयर इज सम मोमेंट दैट चेंज योर मूड, दैट चेंज योर डिप्रेशन और योर sadness into happiness. So you all have to tell your own experience, your own idea, what do you think or what do you feel about this. Okay, so आप सब अपने आइडिया, आप सब अपने आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं. एक बार हम देख लेते हैं आइडिया हम किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर. There have been times when I have felt sad, depressed and hopeless. So ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है क्योंकि सबकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस नहीं होती. These are the up downs of the life and we all have to face the same thing. तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस हो, कभी किसी ने सैडनेस फील ही ना की हो. तो ये जो सैडनेस है, डिप्रेशन है, या किसी चीज़ को लेके अगर हम दुखी हैं, उदास हैं, तो सबकी लाइफ में होता है. आप सबने कभी ना कभी फील किया होगा किसी ना किसी रीज़न से कि बहुत ज़्यादा आप किसी बात को लेके सैड है. बट आफ्टर दैट समथिंग हैड टेकन प्लेस, लेकिन वो सैडनेस भी हमेशा नहीं रहती. कुछ ऐसा होता है कि हमारा मूड चेंज हो जाता है. हम अगर किसी रीज़न से दुखी हैं, उदास हैं, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमारी जो उदासी है वो चेंज होके खुशी में बदल जाती है. That has changed those sad moments into those of relief. So this is a reality that if we are sad because of some reason, then there will happen something that will change our sadness into some kind of relief. Okay. For example, one day I was very depressed and feeling alone. So all you can write your own experience here. हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि there was one day when I was very depressed and I was feeling very alone. I went to the park. There I saw some children playing happily. तो सैडनेस की वजह से हम एक बार एक पार्क में चले गए, वहाँ हमने देखा कि सम चिल्ड्रन वर देयर हु आर प्लेइंग वेरी हैप्पीली. आई सेट देयर एंड स्टार्टेड लुकिंग एट देम. आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट सम पॉजिटिविटी एंड माई सैड मूड चेंज्ड. आई स्टार्टेड प्लेइंग विद देम. सो जब हमने देखा कि बच्चे हैं वो कितनी हैप्पीली खेल रहे हैं, तो उन बच्चों को देख के अचानक से हम अपना सैडनेस, अपना दुख, अपनी उदासी भूल जाते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक हैप्पीनेस आ जाता है, और हम भी उन बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट हो जाते हैं. अपनी सैडनेस को हम भूल जाते हैं और हमारी सैडनेस तब तक चेंज हो चुकी होती है हैप्पीनेस में. ओके, तो ये एक्सपीरियंस आप सब ने किया होगा, सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हैं. ओके, so kids, we have completed all the questions that are there in the chapter. I hope the poem or that the explanation and all the literary devices that we have discussed earlier, everything is very much clear to you, as well as the question answers. Okay, so in the next video we will see the next chapter. So see you in the next video. Thank you.